Evangelist Ram Babu welcomes you to Face with Jesus conference on the 4th and 5th of August. Venue is Damodar Hall, N.M. Joshi Vidya Sankul, Dr. Baba Saheb Ambedkar Road, Parel, East Mumbai. Come and meet Jesus face to face and be transformed and receive your miracles and anointing. I just want to share a few minutes with you from Scripture, and then the Lord is going to touch you in a very powerful way today. हम कुछ मिनट आपसे परमेश्वर के वचनों के द्वारा बातें करेंगे और उसके बाद परमेश्वर बड़ी प्रबलता से आपको स्पर्श करेगा। I'll ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। How many of you want to see the power of God operating in your life? आप में से कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर की सामर्थ्य अपने जीवन में काम करते हुए देखना चाहते हैं? सिर्फ कुछ लोग हैं। ओके, ठीक है, सिर्फ कुछ लोग। कितने लोग चाहते हैं? I want to see the power of God operating in me. आप में से कितने ऐसे कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में काम करे? Can you hear hallelujah? Hallelujah. Hallelujah. You see, one thing the Lord spoke to me and my son. एक बात वो जो परमेश्वर ने मुझे और मेरे बेटे से कही, I am coming soon. मैं जल्दी आ रहा हूं। He said, before I come, इससे पहले कि मैं आऊं, you know, we know very well one of the things God wants us to know is people should know about Jesus Christ. एक बात हम जानते हैं कि यीशु मसीह आने से पहले परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान ले। Can you hear hallelujah? हालेलुया। Hallelujah. The Lord wants people to know that He is coming soon. और प्रभु चाहता है कि लोग ये जान लें कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। And people should know the reality of Jesus Christ the Lord. और परमेश्वर ये भी चाहता है कि लोग यीशु मसीह की सच्चाई को जान लें। I want to ask you one question. मेरे तरफ देखो सब, मेरे ओर देखो. I want to ask you a question. अब सब हमारी ओर देखें और हम आपसे अब एक सवाल Now a पूछना house चाहते हैं। is burning. मान लीजिए घर जल रहा है And in that house there are some people stuck. और उस जलते हुए घर में कुछ लोग फंसे हुए हैं। And four people are walking, one auto driver and one fisherman and one taxi driver and one beggar. और चार लोग जो है वहां से होकर जा रहे हैं। एक है ऑटो ड्राइवर, एक है टैक्सी ड्राइवर, एक मछली पकड़ने वाला है, दूसरा भिखारी है। And when they see the house burning, और जब ये चारों लोग उस घर को जलते हुए देखते हैं, and there are people inside the house, और देखते हैं कि भाई इस घर में कुछ लोग फंसे हुए हैं, and these four people start running inside. तो ऐसा होता है ये चारों लोग जो है उस घर के अंदर दौड़कर जाना शुरू करते हैं। And then they started bringing the people there from inside to outside. और फिर ऐसा होता है कि जलते हुए घर में से एक एक को वो अंदर से बाहर लाने लगते हैं। And suddenly some special people will come. और फिर अचानक से कुछ विशेष लोग आ जाते हैं। And they say, और वो कहते हैं, who told you to bring the people out of the burning house? कि तुमसे किसने कहा कि ये जलते हुए घर में से इन लोगों को बाहर निकालो? This is not your work. ये तुम्हारा काम नहीं This है। is a fire people work. ये जो है वो अग्निशामक दल के लोग हैं, उनका काम है। So why did you do that? तुमने ऐसा क्यों किया? You are done wrong. तुमने गलत किया। If they say that, अगर वो ऐसा कहते हैं, is it right or wrong? तो उनका कहना सही है या गलत है? कितने लोग बोलते हैं wrong? Can I see the hand up? जो लोग कहते हैं गलत है वो अपने हाथ उठाकर दिखाएं। Huh? How many believe it's wrong? Okay. Now comes the question, why it is wrong? अब सवाल ये उठता है कि क्यों ये बात गलत है? When people are dying, जब लोग वहां मर रहे हैं, anybody can go and save them. कोई भी जो है वो जाकर उन्हें बचा सकता है। Can you hear hallelujah? हालेलुया। You don't need fire brigade people only. आपको लोगों को आग में से बचाने के लिए अग्निशामक दल के लोगों की ही केवल जरूरत नहीं है। In the same way, उसी तरीके से to save the people who are going to hell, you don't need specialist evangelist Ram Babu, specialist evangelist Ankit, specialist Pastor Daniel Calver alone to do the job. और इसीलिए लोगों को नरक की आग से बचाने के लिए आपको केवल भाई राम बाबू या फिर अंकित या फिर मेरी या किसी और पास्टर की आपको जरूरत नहीं है। Every child of God should be there to save people from destruction. जरूरी है कि परमेश्वर की हर एक संतान वहां पर हो ताकि लोगों को उस विनाश से बचा सके। Can you hear hallelujah? हालेलुया।
And when a child of God says, I am willing to go and bring the people out of the fire, और जब परमेश्वर का कोई भी बच्चा ये कहता है कि मैं तैयार हूं उस आग के अंदर जाकर लोगों को बचाने के लिए, they are the people through whom the miracles will happen. तो ऐसे ही लोगों के द्वारा चमत्कार होते हैं. तो अब सवाल, कितने लोग प्रभु के चमत्कार अपने जिंदगी के द्वारा देखना चाहते हैं? ओके, कीप योर हैंड्स अप. आप हाथ ऊपर रखें. If that is your case, अगर ऐसा आपके बारे में है, then you must be willing to go into the fire and save the people inside the तो fire. आप में ये चाहत होनी चाहिए कि आप आग के अंदर जाएंगे और आग में फंसे हुए लोगों को बचा लेंगे. Are you ready for that also? तो आप इस काम को करने के लिए तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया. When Indian army sends somebody to fight the battle, जब भारतीय सेना किसी को भेजती है युद्ध लड़ने के लिए, they will not send them empty-handed. तो उनको खाली हाथ नहीं भेजती है. They will give in their hand बंदूक and send them. और भारतीय सेना उस सैनिक के हाथ में एक अच्छी बंदूक देती है और उसे लड़ने के लिए भेजती है. हाँ या ना? हाँ? बंदूक will not be given to somebody who want to sit on a chair. और फिर बंदूक उस आदमी को नहीं दी जाएगी जो एक कुर्सी पर बैठे रहना चाहता If है. you want to go into the battle, army will give you gun and say, now go, I will train you, go now. अगर आप युद्ध लड़ने के लिए जाना चाहते हैं तो भारत की सेना जो है वो आपको बंदूक देगी और आप वो कहेंगे कि ठीक है अब हमने आपको सिखा दिया, अब आप जाओ. Hallelujah. हालेलुया. In the same way, ठीक उसी तरह if से you are willing to go forward and say, Lord, I will go and rescue people, God will put a banduk of miracles in your hands. और अगर आप वो व्यक्ति हैं जो अपना पांव आगे बढ़ाकर परमेश्वर से कहेंगे कि हाँ परमेश्वर मैं इस काम को यानी लोगों को बचाने के काम के लिए अपना पैर आगे बढ़ाता हूं, तो परमेश्वर चमत्कार रूपी अपनी बंदूक आपके हाथ में दे देगा. Hallelujah. हालेलुया. कितने लोगों के हाथ में प्रभु का चमत्कार का बंदूक चाहिए? अपने हाथ उठा के दिखाइए आप मेरे. ओह हल्लो, मुझे भी चाहिए डैनियल भाई, मुझे भी चाहिए. यस, मुझे भी चाहिए. मैं आप तो हाथ उठा रहा, मैं पैर भी उठा रहा हूं. Hallelujah. हालेलुया. Listen to me today carefully. इस बात को आज ध्यान से सुने. Come with 2 Corinthians chapter 5. आइए मेरे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय. 2 Corinthians in chapter 5. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय. We will read from verse 16 onwards. और हम 16वें वचन से आगे पढ़ेंगे 16 to 21. और 16 से लेकर 21 तक. 2 Corinthians chapter 5 verses 16 to 21. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 16 से लेकर 21 तक. So from now on we regard no one from the fleshly point of view, though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे. यद्यपि हमने मसीह को भी उसके शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं. All this is from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. और ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी. That God has reconciled the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the ministry of reconciliation. अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making an appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. और इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं. Hallelujah. हालेलुया. Now listen carefully what I want to tell you. अब मैं जो बताना चाहता हूं ध्यान से सुने. The Bible says that, when you come to Jesus Christ, और बाइबल कहती है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं you become a new creation. तो आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं. The Bible says when you come to Christ, a miracle will happen to you.
बाइबल बताती है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे आपके लिए एक चमत्कार होगा। You become a new creature. आप जो है एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? You know how many people told you, अरे तू यीशु के पास, कितने लोग आपके बारे में ऐसा बोला, तू यीशु के पास जाने से कितना अच्छा था रे, यीशु के पास जाने के बाद तुझे क्या हो गया, तू ये अजीब गरीब ऐसे ही कुछ हो गया तुझे, कोई ऐसा बताया आपके बारे में? हाँ, बताया ना, हाथ दिखा के बताओ ना। हाँ, पहले कितना अच्छा था, हमारा साथ जाता था, हमारा साथ शराब पीता था, हमारा साथ लड़की को देख के सीटी बजाता था, हाँ हमारा साथ ये सब करता था, भी क्या हो गया तू, कुछ नया गांधी हो गया तू, कुछ नया हो गया तू, कुछ हो गया, ऐसा किसी ने कहा आपके बारे में? ऐसा नहीं कहा ना, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। जो पहले से था ऐसे ही अब भी है तो उद्धार नहीं हुआ। हाँ, if people did not say something has gone wrong with you after going to Christ, then you are not saved. मसीह में आने के बाद अगर लोग आपके बारे में कुछ अपने विचार नहीं रखते हैं या बदले हुए विचार नहीं रखते हैं, इसका मतलब कि अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ है, आप जैसे थे वैसे ही हैं। कितना डैनियल कैल्विन देखो, नहीं यीशु के पास गए, कुछ हो गया उसको, क्या हो गया, इतना फर्क आ गया। अभी फ्रांसिस को देखो, यीशु के जाने से पहले भी ऐसा ही था, यीशु के पास जाने के बाद भी ऐसा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। When you come, Bible says, when you come to Christ, बाइबल कहती है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, when you come to Christ, 17वां वचन कहता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, you become a new creation. तो आप नई सृष्टि बन जाते हैं। अब यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यीशु के पास, यीशु यहां है, till you reach Jesus, two people go together. कोई मेरे साथ आ जाना, ये जानी रे आजा। अभी ऐसा सोचो, यीशु यहां है, हम दोनों जा रहे, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, ठीक है, हम दोनों ऐसा जा रहे। यीशु के पास राम बाबू गया, जानी ऐसे ही जा रहा है। The moment Ram Babu came to Christ and came out, he's a different person. उसका जिंदगी ऐसा है, इसका जिंदगी बदल गया। और जब कोई मसीह यीशु में आता है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो Johnny will ask me, तो जॉनी मुझसे पूछेगा, What happened to you, brother? भाई क्या हुआ आपके साथ? मैं भी बचपन से चर्च जाता था। मैं तो बचपन से मसीही हूं। हाँ, मेरी जिंदगी में ये चेंज नहीं हुआ। ये क्या हो गया आपको? आप यीशु के पास है, जिंदगी बदल गए। कैसे बदल गया है? एक ही है, अभी राम बाबू नया सृष्टि बन गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नया सृष्टि मीन्स द वे यू थिंक इज डिफरेंट, द वे यू टॉक इज डिफरेंट, द वे यू बिहेव इज डिफरेंट। और नई सृष्टि इसका मतलब कि आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, आपके बोलने का तरीका बदल जाता है, आपके काम करने का तरीका बदल जाता है। One Christian told me, एक क्रिश्चियन ने मुझसे कहा, मेरी जिंदगी बदल गया, मेरी जिंदगी बदल गई। मैं चर्च जाने से पहले सिगरेट पीता था, चर्च जाने के बाद बीड़ी पीने लगा। वाह 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 वाह, क्या बदला रे बाबा जिंदगी। सिगरेट गया, बीड़ी आया, वो सुधरा ही। When you come to Christ, you become a new creation. That means you become somebody who was not there before. और जब आप मसीह यीशु में आते हैं तो आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। इसका मतलब आप वो बन गए हैं जो इससे पहले नहीं थे। Hallelujah. हालेलुया। All things will pass away. पुरानी बातें सब बीत गई हैं। All the old things will pass away. संसारिक सारी बातें बीत गई, निकल And गई। everything shall become new. और वो कहते कि देखो सब बातें नई हो गई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु के पास आने के बाद आपको दुम आ जाएगा और दूसरा सिर आ जाएगा और एक हाथ आ जाएगा, नहीं, अंदर से पूरा बदलाव हो जाएगा। आमीन। Can you hear hallelujah? हालेलुया। And when you change inside, और जब आप अंदर से बदल जाते हैं, that change from inside will be seen outside also. और जो अंदर से बदलाव हुआ है वो बाहर से भी दिखाई देता है। Can you hear hallelujah? हालेलुया। Hallelujah. So the first thing happens when you come to Christ. और इसीलिए
जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं जो पहली बात होती है वो ये होती है You become a new कि creation. आप एक नई सृष्टि बन जाते Can you हैं। hallelujah? हालेलुया। If there's anybody who want to change in life, you not become new creation. Today is the day you're going to come to Christ. You're going to become new creation in Christ Jesus. और यदि आज आप में से कोई ऐसा है कि जिसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और अगर आप एक नई सृष्टि बनना चाहते हैं तो आज आपको मौका मिलेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर यहां से बदली हुई सृष्टि बनकर जाएं। लोग बोलेंगे अरे वो मीटिंग जाने से पहले ये अलग था, मीटिंग से आया अलग आदमी आ गया। मीटिंग जाने से पहले जुम बराबर था, मीटिंग से आने के बाद यीशु का दीवाना होके आ गया। Can you hear hallelujah? हालेलुया। Hallelujah. Now many people when you become a new creation, देखिए जब आप नई सृष्टि बन जाते हैं तो कई लोग we are happy about it. तो हमें इसके बारे में खुशी होती है। We go to church, हम चर्च जाते हैं, we sit in the church, हम कलीसिया में जाके बैठते हैं, worship, आराधना करते हैं give offering, और अपने दान देते हैं, come back, वापस आ जाते हैं। that's it. बस इतनी हमारी जिंदगी होती है, That's all. बस इतना ही होता है। We go to meetings, हम ऐसी सभाओं में जाते हैं super meeting, और अच्छी अद्भुत सभाओं go में, back home, फिर घर पहुंचते हैं, that's it. बस इतना ही। Go to church, चर्च जाते हैं, sit in the church, चर्च में बैठते हैं, look to pastor पास्टर को देखते हैं and say, और कहते हैं 15 साल हो गया, आज चर्च अभी तक बढ़ती नहीं हुआ चर्च में। हाँ 15 साल हो गया चर्च में नए लोग पास्टर नहीं लेके आया, ये पास्टर क्या काम कर रहा है, स्टार्ट कमेंटिंग। और इस तरह से बैठकर हम पास्टर के ऊपर दोष लगाना शुरू करते हैं। बट लिसन, लेकिन सुने, व्हाट इज गॉड्स विल फॉर यू? आपके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? हाउ मेनी वांट टू नो, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो व्हाट इज गॉड्स विल फॉर यू? आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रेज गॉड। व्हाट इज गॉड्स विल फॉर यू? आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज बिकमिंग न्यू क्रिएशन। पहला जो कदम है वो ये है कि आपको नई सृष्टि बनना है। एंड डोंट स्टॉप देयर। और नई सृष्टि बनकर रुकना नहीं है, देयर इज अ नेक्स्ट स्टेप। एक और कदम है आगे बढ़ाने के सब लिए। बोलो आगे कदम, बोलो आगे कदम। सब बोलो आगे कदम। कम ऑन, आई वांट एवरीबॉडी। हाथ आगे का मतलब ऊपर, आगे कदम बोलो, ऐसे बोलो। बोलो आगे कदम। ओके, बाजू वालों को देख के बोलो आगे कदम बढ़ाओ। बढ़ाओ। बोलो आगे कदम बढ़ाओ। बोलो आगे कदम बढ़ाओ। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब अगला कदम क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अगला कदम क्या ओके, है? लेट्स कंटिन्यू सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। आइए देखेंगे आगे। 2 Corinthians 5 we'll read again. We'll read verse 20. और हम 20वां वचन पढ़ेंगे। 2 Corinthians 5:20. दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 20वां वचन। Now then we are ambassadors of Christ. और अब हम मसीह के राजदूत हैं। Can you hear hallelujah? Hallelujah. हालेलुया। After new creation, नई सृष्टि बनने के बाद next step, अगला जो कदम है, जो हम लोगों को नई सृष्टि बनाया उसके राजदूत हम बनना चाहिए हम लोगों को। हालेलुया। Can you hear hallelujah? New creation, नई सृष्टि, next step ambassador of और Christ. दूसरा मसीह के राजदूत। बोलो ऐसा, everybody say first new creation. पहला नई सृष्टि, बोलो सब बोलो पता जाने का सब पहला बोलो। नई सृष्टि। Say it again. फिर से कहेंगे, नई सृष्टि और मसीह के राजदूत। Say it again. नई सृष्टि, मसीह के राजदूत। Hallelujah. हालेलुया। Many people stop at that नई सृष्टि. और कई लोग ऐसे होते हैं जो नई सृष्टि बनने के बाद वहीं के वहीं रुक जाते They हैं, don't want to go to next level of राजदूत. और वो जो है अगला कदम राजदूत की तरफ नहीं बढ़ाना पाते। How many of you want to become राजदूत? आप में से कितने ऐसे हैं जो यीशु मसीह के लिए राजदूत बनना चाहेंगे? मैंने हाथ नहीं देखा। उसके लिए क्वालिफिकेशन वो इट इज नॉट you study, you must be educated, you must know read to write, you must speak English. No. उसके लिए शैक्षणिक योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। राजदूत बनने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है आपको। The one qualification, केवल एक ही योग्यता होनी चाहिए, यीशु में नई सृष्टि बनना चाहिए। यीशु में नई सृष्टि हो। Can you hear hallelujah? हालेलुया। That's only qualification. बस इतना ही चाहिए, Nothing else is required. और कोई योग्यता नहीं चाहिए। Now comes a question. अब एक सवाल आता है। सब मुझे सवाल पूछो। हाँ? सब सवाल पूछो। राजदूत का मतलब क्या है? पूछो मुझे। हाथ दिखा कर पूछना ऐसा।
हाथ दिखा रहे भैया, क्या हो गया तुम लोगों को? जिसने हाथ दिखाएगा उसका हाथ में पैसा रखता हूं, अभी हाथ दिखाओ। बोलो राजदूत का मतलब क्या है? पूछो पूछो, अरे बस राजदूत का मतलब क्या है? Ambassador means he is a person who represents one country in another country in full form. और राजदूत ये वो व्यक्ति होता है जो अपने देश की ओर से किसी और देश में जाता है और उस देश का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से करता है। हेलो, हालेलुया। इसका मतलब when the ambassador of India is in America, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए भारत का राजदूत अमेरिका में है, he is representing India in fullness in America. वो पूरी तरह से भारत का प्रतिनिधित्व अमेरिका में करता है। That means इसका मतलब whatever the Indian ambassador America says, it's like India saying it. और इसका मतलब यह हुआ कि भारत का जो भी राजदूत अमेरिका में कहता है उसके शब्द मानो ऐसे हैं कि पूरा भारत देश कह रहा है। समझ में आया नहीं है? When Indian ambassador America says America is beautiful, India is saying it. और अगर भारत का राजदूत अमेरिका में जाके इस बात को कहता है कि भाई अमेरिका बहुत खूबसूरत है, तो उसके ये जो शब्द हैं मानो ऐसे हैं कि पूरा भारत देश कह रहा है। इसका मतलब whatever ambassador says, it's like the whole country saying. इसका मतलब जो भी राजदूत के मुंह से शब्द निकलते हैं वो शब्द मानो ऐसे हैं कि उसके देश ने कहे हैं। In the same way, उसी तरीके से we are ambassadors of Christ. हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। That means इसका मतलब whatever you say, इसका मतलब जो भी आप कहेंगे it's like Jesus saying it. वो मानो ऐसा है कि यीशु ने कहा है। Hallelujah. हालेलुया। I am the ambassador of Christ living on the earth. और मैं मसीह का राजदूत हूं, इस पृथ्वी पर जी रहा हूं। That means इसका मतलब I am representing everything Jesus is here on the earth. इसका मतलब यीशु जो कुछ भी है मैं उसको यहां इस पृथ्वी पर दिखाता हूं। क्या यार तुम लोग हालेलुया कुछ नहीं बोल रहे? जोर से हालेलुया बोलो ना। That means इसका मतलब what you say is what Jesus says. इसका मतलब ये कि आपके मुंह से जो शब्द निकले हैं वो मानो यीशु के मुंह से निकले हैं। Hallelujah. If Indian ambassador is found on the road drunk and fallen down, अगर भारत का राजदूत किसी देश में शराब पीकर रास्ते पे ऐसे गिरा हुआ मिलता है, it's like India has fallen down. इसका मतलब ये होता है कि भारत नशे में वहां गिरा हुआ है। That means whatever you do is like what Christ is doing. Whatever you say is like what Christ is saying. इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं मानो यीशु कर रहा है, जो कुछ आप कह रहे हैं मानो यीशु ने कहा है। And और in America, अमेरिका में if somebody wants to meet India, अगर कोई व्यक्ति भारत से मिलना चाहता है, let him meet the ambassador. वो जो है पहले राजदूत से मिलता है। If you meet the ambassador, you meet the country. अगर आप राजदूत से मुलाकात करते हैं इसका मतलब आप उस पूरी देश से मुलाकात कर चुके। Hallelujah. Okay. One day, एक दिन Peter and John were going to the temple to pray. पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना करने के There was लिए। a crippled man sitting on a beautiful gate. और सुंदर नाम के फाटक के पास एक अपंग व्यक्ति था, लंगड़ा व्यक्ति था, वो बैठा हुआ He था। was begging. बैठकर वो भीख मांग रहा था। Looking at Peter and John, he expected something. और पतरस और यूहन्ना को देखकर कुछ पाने की आशा में उनके से भीख मांगने लगा। Let's read Acts chapter 3. निकालेंगे उसको प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय। Acts chapter 3, please. प्रेरितों के काम 3रा अध्याय। We will read verse 4. और 3रे अध्याय के जो है हम 4थे वचन से पढ़ना Acts शुरू 3:4. प्रेरितों के काम 3:4। Peter, fastening his eyes upon him with John, he said, "Look to Jesus." और पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, यीशु की ओर देख। क्या कहा पेतरस ने? पतरस ने क्या कहा? I didn't hear. What? क्या कहा? जोर से पढ़। हिंदी पढ़ना नहीं आता है कि तुम लोगों को? क्या बोला?
हमारी ओर देख। अगर आज के लोग हैं तो बोलेंगे कितना घमंड है रे पीटर, हमारे ओर देख बोल रहे, यीशु के ओर देखना नहीं। People will think the humility is you must say look to Jesus. और लोग ये सोचते हैं कि नम्रता इसका मतलब उस आदमी ने कहना चाहिए था कि भाई यीशु की ओर देख। But Peter and John said look to us. लेकिन पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारी ओर देख, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। If you tell the people of the world यीशु की तरफ देखो, they will imagine the photograph of विजय चंद्र दया सागर। अगर आप संसार को कहेंगे कि यीशु की ओर देख, तो वो लोग जो है दया सागर पिक्चर में जो यीशु का किरदार जिसने निभाया है उसके फोटो को देखेंगे। पीटर, योहान, you know, what do you think when imagine you go to a non-Christian and say यीशु की ओर देखो, किसको देखेगा वो? कल्पना करें कि अगर आप किसी गैर मसीही या अविश्वासी के घर पे जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि यीशु की ओर देखो, तो वो किसकी ओर देखेगा? Peter and John said, पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारे ओर देखो, हमारी ओर देखो। क्यों? अगर हमारे ओर देख लिया तो यीशु को देख लिया। ताली बजाए बार प्रभु के लिए। हालेलुया। अगर हमारे ओर देख लिया तो यीशु को देख लिया। ये हिम्मत सिर्फ यीशु के राजदूत में होता है। Can you hear hallelujah? God wants to raise his believers to such a level where the believers will go anywhere, and the world is asking, where is Jesus? Believers will say, you want to see Jesus? Look at me, you will see Jesus. परमेश्वर इन अंतिम दिनों में ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो कि हर जगह जाएंगे, और जब संसार के लोग उनसे पूछेंगे कि हमें यीशु मसीह को दिखाओ, और ये पूछेंगे अगर तुम यीशु मसीह को देखना चाहते हो तो हमें देखो। इसका मतलब ना सब दाढ़ी बढ़ाओ, लंबा लंबा बाल बनाओ, सफेद कपड़े पहनो और हाथ रख के जाओ, वो नहीं। People should see Jesus in us. जरूरी है कि लोग हमारे अंदर यीशु मसीह को देखें। How did Peter and John show Jesus? कैसे पतरस और यूहन्ना ने उस भिखारी को जो है यीशु दिखाया? हमारे ओर देखो। उसने कहा हमारी ओर देख। He looked at them. और फिर उसने उनकी ओर silver and gold we don't have. और कहा कि देख सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं What है। we have we give to you. और जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। In the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम से। चलो, get up and walk. उठ जा और चलना शुरू कर। Immediately even walking and leaping and praising God. अचानक से वो उछलकर खड़ा हो गया, कूदने लगा और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगा। And the crippled man saw Jesus. और उस लंगड़े व्यक्ति ने यीशु को देखा। Evangelist Ram Babu welcomes you to Face with Jesus conference on the 4th and 5th of August. Venue is Damodar Hall, N.M. Joshi Vidya Sankull, Dr. Baba Saheb Ambedkar Road, Parel, East Mumbai. Come and meet Jesus face to face and be transformed and receive your miracles and anointing.